यीशु नाम, यीशु नाम. Amen. He is a name above all names. निश्चित ही ये एक नाम है जो सारे नामों से आला है और ऊंचा भी है. His name is Jesus. और वो नाम जो दिया हुआ है उसका नाम है यीशु. There is power in his name. और ये नाम में सामर्थ है. His name is Jesus. हालेलुया. जिस नाम में सामर्थ होता है वो नाम यीशु है. There is Hallelujah. healing in his name. और उस नाम में सामर्थ से लेकर चंगाई भी है. There are miracles in his name. चमत्कार और मौजज़े भी है. And there are answers to prayer in his name. और उस नाम में सारे प्रार्थनाओं के उत्तर भी हमें मिलते हैं. यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय. यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय. जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह. वो जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह. यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय. यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय. He's a name above all names. His name is Jesus. There is power. There is power in that name. His name is Jesus. His name. He's the name above all names. His name is Jesus. There is power in that name. His name is Jesus. 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 Come on, sing it, church. His name. His name is Jesus. Jesus is in this place. Oh, yes, he is. His name is Jesus. His name is Jesus. Jesus. Oh, Jesus. His name is Jesus. Oh, Jesus. यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय. यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम,
on the streets of Jerusalem, through Galilee, when a man named Zacchaeus heard that he was going to pass by. He had heard of this Jesus being a great prophet and he wanted to see him. Zacchaeus was a rich man. He was a man of dignity and power. But he wanted to see. He wanted to see what this man named Jesus of Nazareth really was. Because he had heard about all the great things that he had done. And the Bible records and says, Zacchaeus was a man of short stature. So he climbed up a sycamore tree to get a good look at the master. And while the master was passing by, in all that crowd of people, in all that noise and all that scurry, in all those people touching him and asking him and pleading with him to give them a miracle, and all that noise, my friends, Jesus looked up at that tree. And he cried out and said, Zacchaeus, come down. वही यीशु जो प्रचार करता है और हजारों लोग उसके पीछे हो लेते हैं। इस यीशु को मुझे देखना है, इस यीशु से मेरी मुलाकात होनी है। इस यीशु, ये व्यक्ति, ये आदमी, ये पुरुष कौन है, मुझे बस देखना है। बस देखने के लिए क्या आप आए हो? मैं आज आपको बताने जा रही हूँ, अगर आप इस चैनल यीशु को देखने अगर आए हो, सुनने के लिए आए हो कि क्या बोल रहे हैं ये लोग, हम केवल सुन लेंगे, देख लेंगे, मैं आपको बता रही हूं, आज यीशु आपसे मुलाकात करेगा। Oh, you will not just be sitting on that tree to see him. You are going to have an even more closer visitation from him. केवल आप उस पेड़ के ऊपर से उसको देखेंगे ही नहीं, ताकेंगे ही नहीं, दूर से नहीं ताकेंगे, वो आपके घर में अभी आकर आपसे मुलाकात इस सुबह के वक्त करने आ रहा है। अरे ज़क्कई उस पेड़ से नीचे उतरा, और क्योंकि मैं तेरे घर में आज खाने आने वाला हूँ। ज़क्कई, मैं आपसे बता रही हूँ, आपसे बोल रही हूँ, हर एक भाई और बहन को उस पेड़ से आप नीचे उतराना और आपके घर के दरवाजों के लिए को उस स्वामी के लिए, उसके स्वागत के लिए खोल देना। Open the doors of your house to welcome the King, to welcome the Lord. He is coming to your house this evening. He is coming to your house right now. He's coming right now while you are worshiping Him. Jesus is here. Lift up your hands and feel His holy presence. Jesus is here. Jesus is here. He's right there in your house. Lift up your hands and feel His holy presence. Jesus is here. Lift up your eyes and feel His holy presence. Jesus is here. वो जरूर ही हमारे बीच में आज मौजूद है, हर एक को स्पर्श करने के लिए, छूने के लिए, तंदुरुस्त करने के लिए, आराम देने के लिए, शांति देने के लिए, फिर ताज़ो-तर्रा करने के लिए। वो आपके घर में, आपके पास मौजूद है और उसके आत्मा के द्वारा वो आपको छू रहा है। He is touching you by His Spirit right now. Thank you, Father, for your presence in this place. Precious Jesus, we thank you, Lord, that you enthrone yourself in the praises of your saints. Though we are so undeserving and unworthy of your presence, yet, Lord, you choose to dwell in this tabernacle, in these tabernacles, Lord, that have surrendered themselves to you.
जब भी हम इसके लिए पात्र नहीं, योग्य नहीं, तब भी परमेश्वर तू हमारे बीच में, हमारे अंदर, हमारे भीतर रहने के लिए आ रहा है और आता है और इच्छुक होता है। इसलिए धन्यवाद देते हैं कि हमारे अंदर इतना बड़ा परमेश्वर वास करता है उसकी आत्मा के द्वारा। धन्यवाद हो परमेश्वर। आज हमारे घरों में तू आ जा यीशु, हमारे घरों में फिर से आ जा, हमारे जीवनों में फिर एक बार और आ जा, हमारे बच्चों के जीवनों में फिर एक बार और आ जा, हमारे कलीसिया के अंदर फिर एक बार और तू आ जा और तू बैठ जा हमारे साथ, बातचीत कर, हमें छू ले। ओ शम्र खेरे रे अंधे, तेरे मेज के पास जो भी आता है वो कभी खाली हाथ नहीं जाएगा। Whoever comes to the table of the Lord will never go empty-handed. Thank you, Lord, once again for your glorious presence in this place. I pray that you cover and hide your servant behind the cross, that every word that comes out of his mouth will bring life, healing, health to every person that listens. हर एक कान पे जब आज का वचन और प्रचार जाएगा, परमेश्वर वो जीवन देने लायक हो, ओ चंगाई देने और छुटकारा देने लायक वो वचन हो। यीशु के नाम से हर एक बदरुए और जुआ तोड़ा जाए और आज तेरा ही राज यहाँ पर स्थापित हो। तेरे बंदे को अभिषिक्त कर हर एक शब्द अग्नि और आत्मा और जीवन लाने वाला हो सके। यीशु के नाम से ये सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन। Hallelujah. Shalom Shalom and welcome to our weekly Sunday service. और हमारे आज के रविवार के इस सभा में सबका स्वागत हो। So how are you this morning? इसीलिए आइए मैं आपसे पूछूंगा, आपकी सेहत, आप स्वस्थ हो या नहीं, कैसे है? If you are well, अगर आप अच्छे हो, you're going to feel much better. भले चंगे हो तो आपको और भी ज्यादा अच्छा लगने वाला If है। you're a bit sick this morning, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा बीमार लग रहा है get ready to receive your healing. तो आज चंगाई हासिल करने के लिए आप जरूर रुकिए। If you're tired, you're pulled down, get ready to receive joy and get ready to receive His shalom. और यदि आप बड़े थके हुए हो और थके मांदे हुए हो तो आज परमेश्वर से आनंद ग्रहण करने के लिए आप तैयार बन So जाइए। let us turn to the Gospel of Matthew this morning. आइए मत्ती रचित सुसमाचार से आज सुबह हम अध्ययन करने So जा this, रहे हैं। you've seen the title. I hope you've seen the title of the sermon this morning. It's Follow Me. और हमारा पर्चा जो है आज के सभा के लिए आपने शायद पढ़ भी लिया होगा, उस पे लिखा है कि मेरे पीछे हो लेना या मेरा अनुकरण करना। You know, there are many people on Facebook or any social media and they have followers. They have millions and millions of followers. अब बहुत ही फेसबुक और सोशल मीडिया पे बहुत बड़े बड़े मशहूर लोग हैं जिनके फॉलोअर्स, जिनको बोला जाता है, वो बहुत ज़्यादा है, लाखों लाखों है। And these people follow every move. They look at every picture that is taken. They even follow the meals that they eat. They follow the clothes that they wear. अब ये लोग जो है फॉलोअर्स जो होते हैं, जिनके पीछे वो फॉलो कर रहे हैं, उनके सारी बातों में इनकी बड़ी रुचि होती है। मतलब वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, किधर जाते हैं, क्या क्या करते हैं, सारी उनके बातों में इनको बड़ी रुचि होती है। And they even have, pop-ups whenever there's a breaking news concerning this person who's famous or whatever the person is, and you get it first, and you just so interested, you will leave everything and you will just read this breaking news. सुनिए, इस व्यक्ति के बारे में जिसको फॉलो कर रहा है वो व्यक्ति, वो जो बड़ा प्रसिद्ध और मशहूर व्यक्ति है, उसमें अगर उसने कुछ, उसकी ज़िंदगी में कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई मानो, तो ये इनके पॉपअप्स जब आते हैं उनके फ़ोन के ऊपर या लैपटॉप्स के ऊपर, वो एकदम जल्दी से उसके पेज के पास जाते हैं, पढ़ लेते हैं और बिल्कुल उसकी जानकारी ले लेते हैं, तुरंत ले लेते हैं। So this morning, if you want to follow Kabod Temple, that too you can do, and I do request that you do follow us on our social media. और ये हम आपसे विनती कर रहे हैं, रेकमेंड भी कर रहे हैं, कबोड टेम्पल को ज़रूर फॉलो कीजिए। वो जो बेल आइकन है नोटिफिकेशंस का, उस पर आप दबा लीजिए, क्योंकि ये जो हम इस पेज पर डालते हैं वो आपके ज़िंदगी को बढ़ाने के लिए चीज़ें हम डालते हैं, बार बार डालते हैं, इसलिए आपकी उन्नति के लिए वो आप ज़रूर उस पर फॉलो कीजिए या उस बेल पर सब्सक्राइब Now, if कीजिए। you follow us, अगर आप फॉलो कर ही रहे I हैं, ensure you, मैं आपको यहाँ से आश्वासन दे रहा हूँ, it's not about the pastor,
ये जब हम इस पेज पर कुछ भी डालते तो वो पासबान के बारे में नहीं होता है. Not about the pastor's wife or the pastor's children or nothing. Is only about Amen. Jesus. ये इस कलीसिया का जो पादरी है उसके जीवन के बारे में कुछ नहीं मिलता आपको वहां पर भैया. उसके परिवार के बारे में भी कुछ नहीं मिलेगा आपको. केवल यीशु के बारे में सब कुछ मिल जाएगा. Amen. So in Hallelujah. the world that we're living in today, जिस दुनिया में आप और मैं आज जी रहे हैं and with all the chaos that is happening right now, और जो कुछ गड़बड़ी सब तरफ मच गई है हमारे गोल, with all the political turmoil happening between countries who used to be allies and good friends, अब जो एक समय में जो राष्ट्रों में बिल्कुल दोस्ती होती थी अब उनमें ही बैरपन जो होता है, बैरी आ गई है, दुश्मन बन गए हैं. ये सारे जो हादसे हो रहे हैं. now I do not follow too much of the news like before. पहले जैसे मैं बहुत ज्यादा जो खबरें हैं मैं सुनता नहीं हूँ, पढ़ता भी नहीं हूँ. But the little that I've watched and I've seen, लेकिन अभी अभी जो मैंने थोड़ा सा देख लिया, जो मैंने सुना, it gives me chills because it shows me that Bible prophecy is unfolding before our eyes. पढ़ने के बाद ही भाइयों बहनों मानो मेरे हाथों पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि बाइबल में दी हुई भविष्यवाणी हमारे आंखों के सामने पूरी होती जा रही है. ये मैंने देखा है. The closer we get to the coming of our Lord Jesus, जितना करीब यीशु की आमद के पास हम जाते रहे हैं, yes, he's coming soon. जी हाँ, यीशु जल्द आ रहा है. How soon? कितना जल्द आ रहा है Let's wait and see. आपको रुक कर देखना पड़ेगा. But लेकिन the enemy शैतान wants to get millions and millions of people on his side. शैतान चाहता है कि उस समय तक वो लाखों लोगों को अपने पक्ष में ले आए. And especially those who are in church. खास तौर से वो उन लोगों की चाहत ज्यादा रखता है जो लोग मसीह है, जो कलीसिया में जाने वाले होते Because हैं. those who do not know Jesus are already lost. सुनिए, जो लोग यीशु को नहीं जानते, अरे वो पहले से ही गुमराह हो गए हैं. Now he needs to go into the church and remove people. अब शैतान क्या षड्यंत्र रच रहा है कि मैं कलीसिया के अंदर घुस जाऊंगा, वहां से लोगों को निकाल कर मेरे पक्ष में ले आऊंगा. He doesn't have to there's no effort to be made for those who are not in Christ. क्यों? क्योंकि जो लोग मसीह के पीछे नहीं चल रहे हैं उनको अपने पक्ष में खींचने में उसको कोई कोशिश करने ही नहीं See, पड़ती है. listen, the police does not go and go after those already in jail. सुनिए, एक उदाहरण दे रहा हूँ. पुलिस जो होता है, जो कैद खाने में बंद होता है, वो गुनहगार या कैदी, उसके पीछे वो नहीं जाता है, उसकी जान के पीछे नहीं लगता He है. goes against those criminals who are at large, who are free. पुलिस उन गुनहगारों के पीछे लगता है, उनके जान के पीछे लगता है, जब तक वो उसको पकड़े ना जो गुनहगार इधर उधर भाग रहे हैं. Now, I'm not saying that Christians are criminals. I'm just saying that Satan is not going to go against those who are already locked up, who are already, doomed, already sentenced to perdition. सुनिए, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि मसीह लोग गुनहगार है, कैदी नहीं. शैतान उन लोगों के पीछे नहीं जाने वाला है जो बिल्कुल बंधे हुए हैं, पहले से ही उसके जेल खाने में बंधे हैं, उनके पीछे वो नहीं लगेगा. उनके पीछे बंद न कर दे. And the pastor is responsible for the church. और वैसे ही पादरी या पासबान जो होता है अपने कलीसिया के लिए जिम्मेदार होता है. That is why we are here to feed you spiritually. Amen. इसी कारण हम यहाँ पर है क्या करने के लिए? आपको आत्मिक भोजन देने के लिए. No matter who you are. आप चाहे कोई भी हो. You may be more educated than me, you may have more money than me, you may be driving a better car than me, you may be whatever you are, but it is my duty as a pastor to take care of your spirituality. सुनिए, आप चाहे कोई भी हो भैया, आप बड़ी गाड़ी, मुझसे भी अच्छी वाली गाड़ी चलाते हो, या मुझसे ज्यादा आपकी पढ़ाई हुई हो, आप बड़े घर में शायद रह रहे हो, लेकिन ये सारी बातें बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं होती, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी होती है पादरी होने के नाते, पासबान खुदा का दास होने के नाते आपको आत्मिक भोजन देने के लिए, आपकी आत्मिक उन्नति देखने के लिए. Let's see chapter 4 verse 18, the Gospel of Matthew. मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय हम देखेंगे. And Jesus walking by the Sea of Galilee.
वहां पर लिखा है कि यीशु गालील के समुंदर के किनारे चल रहा था. He saw two brothers, there's Simon called Peter and Andrew, his brother. उसने दो भाई को वहां पर देख लिया. वो एक था अंद्रेया और शिमोन पतरस. And then what he did, he called them both. अब उसने क्या किया, दोनों को बुला लिया. He said, come here, listen, Peter and Andrew. और वो बोला, चलो तुम दोनों यहाँ पर आओ, पतरस और अंद्रेया. See, I have a plan. देखो मेरे पास ऐसी ऐसी एक योजना है. You can either do fishing. और ये दोनों को बोला, एक तो मेरी योजना एक है कि तुम एक तो मछलियां पकड़ने के लिए जाते रहो. Now, you can either do fishing or you can either follow me. And these are the benefits if you follow me. वो मछुआरे थे, इसलिए यीशु उनको बोला, एक तो तुम मछलियां पकड़ते रहो या मेरे पीछे हो लेना. And there's so many points. और ये इतने ज्यादा देखो मेरा प्लान है, इतने ज्यादा पॉइंट्स मैंने लिखे हैं. You have the chance to walk with God. पहला पॉइंट क्या होता है, परमेश्वर से चलने के लिए आपको मौका मिलता है. Eat with him, spend time with him. अरे अगर आपने मछलियां पकड़ना छोड़ दिया और मेरे पीछे हो लिए, तो तुम खुदावन के साथ चलोगे, घूमोगे, खाओगे, You learn पियोगे, from me. उससे सीखोगे. And you'll have a good position in my kingdom. और मेरे राज में आपको बड़ा अच्छा स्थान भी मिल जाएगा. Did he say all this? ये सारी बातें यीशु ने उनको बता दी No, क्या? sorry, it's not written here. नहीं भैया, यहाँ पर वैसा Okay. कुछ भी नहीं लिखा है. It says कुछ भी here, नहीं. verse 19. मेरे साथ पढ़ लीजिए 19वां पद. They were casting their net, so they were working. They were not sitting idle under a tree, That's right. under the shade and gossiping. No. That's right. सुनिए, ध्यान से सुनिए. 19वें पद में लिखा, जब यीशु ने उनको पाया तब वो स्वस्थ होकर बैठकर आराम से नींद में नहीं थे, वो काम कर रहे थे. And he said to them, यीशु ने उनसे कहा, follow me and I will make you fishers of men. मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा. Verse 20. 20वीं आयत. They immediately left their nets and followed him. 20वीं आयत पढ़ लिए. वे तुरंत जालों को छोड़कर Hallelujah. उसके पीछे हो लिए. Mark- हालेलुया. In Mark, you don't have to turn there. I'll just read it for you. Mark chapter 1 verse, verse 18. और मार्क इसका पहला अध्याय और 18 वचन आप खोलना मत, मैं आपके लिए पढ़ लूंगा. And Jesus says to them, follow me and I will make you become fishers of men. और वहां पर भी लिखा है 17 और 18 में, यीशु ने उनसे कहा मेरे पीछे आओ, मैं तुमको मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा. वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए. Hallelujah. आमीन. Follow me. आमीन. That is all he said. यीशु क्या बोला, ज्यादा नहीं बोला मेरे पीछे आओ. He didn't have time to sit down and give them a plan or a business plan or something like how we have today. You have to sit down and explain everything. यीशु के पास बड़ा पर्चा नहीं था जिसपे उसने सब कुछ लिखा था, मैं अगर मेरे पीछे तुम आओगे तो ये आपको सब कुछ मिलेगा, फायदा होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा. ये सब उसने बोला नहीं. उसके पास बिजनेस प्लान कुछ भी नहीं था. And I find this intriguing. Somebody says, follow me, and then you leave everything. You leave your boat, you leave your nets, and then you follow this man that you hardly know. सुनिए, ये बड़ी अचंभे की बात होती है मेरे लिए समझने के लिए कि तुम जब काम कर रहे हो, तुम्हारा वहाँ पर तुम्हारी बोट है और तुम्हारे जाल है, सब कुछ है, तुम काम कर रहे हो, और एक आदमी चलते चलते आपको बोलता है मेरे पीछे आओ. आप सब कुछ छोड़ देते हो और उसके पीछे हो लेते हो. ये कैसे हो गया? Now this morning, I'm not going to be talking about discipleship. This mainly we will speak about discipleship, but I just want to show you something this morning. आज मैं शिष्यत्व के ऊपर नहीं बोलने जा रहा हूँ. यदि ये जो किस्सा बाइबल का है वो आपको चेले या शागिर्द कैसे बनना है उसके बारे में बताया, मैं वहां नहीं जाऊंगा. Amen. So this morning we see that Jesus approached first of all as his cabinet. If he's a prime minister, he has his ministers. So he's now choosing a cabinet, and now he goes for fishermen. यीशु अब तक तो अकेला था, घूम रहा था. अभी उसको अपनी कैबिनेट अभी लग रही है, मतलब उसके साथ में उसको कुछ लोग लग रहे थे सेवकाई और खिदमत पूरी करने के लिए और आगे ले जाने के लिए. इसीलिए अब वो चुनने लगा लोगों को, और ऐसे लोगों को उसने चुना. कौन थे वो? मछुए थे. Now a fisherman, अब एक मछुआरा, they were casting their nets, so they're always busy. If they're not
fishing, they are either cleaning the boat or mending their nets and cleaning their nets. अब देखिए ये जो होते हैं, जो मछुआरे होते हैं, काम में होते हैं, बड़े बड़े व्यस्त होते हैं ये लोग, कुछ बैठकर चाय वाय नहीं पीते हैं, उनको काम करना पड़ता है। एक तो अगर वो मछलियाँ पकड़ने के लिए नहीं जाते तो वो समुंदर के किनारे बैठकर उनकी जाल को साफ करते होते हैं या उनकी जहाज को भी साफ करते होते हैं। So if the boat is leaking, they cannot catch fish. If the nets are broken, they will not be able to keep the fish in the net. अगर वो कश्ती उनकी है, अगर टूट गई है तो उसको वो दुरुस्त करने लगते हैं, क्योंकि क्यों, अगर उसमें पानी आ गया तो वो अंदर पानी में नहीं ले जा सकते, मछलियां उन पकड़ नहीं सकेंगे, इसलिए वो जो कश्ती उनकी होती है उसको बिल्कुल अच्छे ढंग से उनको संभाल के रखते हैं। So we remember in the Gospel of John, after the resurrection of Jesus Christ, he goes up, he finds the disciples fishing. सुनिए, यूहन्ना के इस पत्री में यीशु जब गया उसने क्या देखा, चेले क्या कर रहे थे, मछलियां पकड़ रहे थे। And he says, have you caught any fish? They said no. और फिर यीशु ने उनसे क्या सवाल किया, क्या आपको कोई मछलियां मिली? उन्होंने बोला नहीं। And then he tells them, फिर यीशु उनको बोला, throw your nets on the other side. तुम्हारी जाल दूसरे बाजू को आप डाल देना। Which they did. जो उन्होंने किया। And then the net was full of fish. I think there was 153 fish, if I remember well. यीशु के कहने पर उन चेलों ने उनकी जाल दूसरी तरफ डाल दी और उनको कम से कम 153 मछलियां मिली, अगर मुझे वो संख्या याद ठीक से। And all of them together, they were pulling out the net together, and they put all the fish in the boat. अब इन सारे चेलों ने उस जाल को हाथ लगा लिया, क्योंकि इतने ज्यादा मछलियां थी, सबने ताकत लगाकर उस जाल को खींच लिया और सारे मछलियों को उस नाव में रख दिया। So fishermen were simple men. सुनिए भैया, मछुआरे बड़े साधारण लोग हैं। They were given an order, throw your nets on the other side. उनको बस एक शब्द, एक वाक्य बोला था यीशु के मुंह के द्वारा, उन्होंने सुना, तुम्हारी जाल दूसरी तरफ डाल दो। They obeyed that order. तो माना। And because they obeyed that order, they were what? They got Amen. something. सुनिए, तब तक वो बड़ी कोशिश और प्रयास कर रहे थे कुछ पकड़ने के लिए। यीशु के कहने पर जब उन्होंने तुरंत एक्शन किया, कृति की, उनको इतने ज्यादा मछलियां मिली कि वो उस नाव में भी रख नहीं पा रहे थे। So they got a great yield. सुनिए, दूसरे शब्द में उनको बहुत ज्यादा फसल मिला। If you're not able to obey orders, सुनिए, अगर किसी ने हुक्म दिया आपके ऊपर, जो अगर हुक्म दिया और आपने सुना नहीं और सुनने की आपके अंदर अगर वृत्ति नहीं है, you know, those who do not obey orders in the job, I know from I used to work as well. Yes. So one written warning, No. 2 written warning, third one is a verbal warning, and then sacked, you fired. मैं भी तो मैनेजर होके आया हूँ भैया, इसलिए मुझे पता है कि जो लोग, जिनका रवैया बिल्कुल गलत होता है ना, काम पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हुक्म सुनने में, आज्ञा सुनने में और वो करने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। आपने बोला मैं नहीं करूंगा, मैं मेरे मन से करूंगा, ऐसे लोगों को मेमोज दिए जाते, एक मेमो, दूसरा मेमो, तीसरा मेमो, भैया अपने आप को सुधार ले, सुन ले और कुछ काम कर ले। नहीं, तब भी नहीं सुनता है। फिर अंत में बोलना, वो मैनेजर जो होता है उसको बोल देता है, अगर तूने इस बार सुना नहीं तुझे निकाल देंगे, तब भी नहीं सुनता है, वो घमंडी होता है, फिर बाद में निकाल देते हैं। Now the fishermen worked together. सुनिए, मछुआरे एक साथ मिलकर काम करते थे। There was fish. Fish means what? Means food. It means money. Now they are working together to take in this Hallelujah. this yield that they just got. They just caught and bring it together into the boat. मछुआरे ने जब ज्यादा उनको वो मछलियां मिली, तब क्या अकेला उन्होंने नहीं खींचने की प्रयास नहीं की, उन्होंने सब मिलकर इकट्ठा होकर एक टीम बनकर उन्होंने उस जाल को खींच लिया, ताकि मछली क्या होती है, वो होता है अनाज खाने के लिए, जो होता है, जो जीवन युक्त चीज होती है, मछली होती है। Now, सुनिए, what does that mean for the kingdom? राज में इसका क्या मतलब होता है? We as Christians, हम मसीह होने के नाते we have to work together. हमें भी एक साथ मिलजुल कर काम करना है।
It doesn't mean that That's right. There is a pastor, it's a fivefold ministry, there's a pastor, you have teachers, you have evangelists, you have prophets, you have apostles. और 5 प्रकार की सेवकाइयाँ होती है, मुझे पता है। वो होता है पासबान, और फिर बाहर जाके सुसमाचार बोलने वाला, फिर भविष्यद्वक्ता, फिर शिक्षक, फिर वो सब होते हैं, पता है मुझे, प्रेरित भी है। Now we need help in the church. लेकिन कोई भी कलीसिया हो, हमारी कलीसिया में भी मदद की जरूरत होती Like है। today we are here sitting and I'm preaching, but there are brothers who are behind the camera, on the computer, and on the what you call it, that board, I forgot the name. Mixer. Mixer. सुनिए, हम तो यहाँ पर बैठकर अच्छे से बातें तो कर रहे हैं भैया, लेकिन हमारी आवाज़ अगर आपको सुनाई दे रही है तो वो जो क्रेडिट होता है उन लोगों को, उन भाइयों को जाता है जो लैपटॉप पे बैठे, जो साउंड पे बैठे, जो कैमरा के पीछे बैठे, उनको मिलता है। One is playing music, one is singing. जो बजाने वाला, जो बाजा बजाने वाला होता है, जो गीत गाने वाला होता है। So we are meant to work together. This is what the family That's of right. God means. टीम वर्क, जो चेले होते हैं ऐसे ही काम करते थे, सब मिलजुल कर काम करते थे। क्या करने के लिए? प्रभु का राज स्थापित करने के लिए। प्रभु का परिवार इसी को कहते हैं। And I pray for all those who are working in companies that God gives you a promotion where you have people under you and you as a supervisor, and then you get some people who are not too what you call it, obedient, and then you have to sanction them. I would like that because it's a good experience. मैं तो प्रार्थना करता हूँ हर एक जन के लिए हमारे कलीसिया में, ताकि उनको बहुत ज़्यादा ऊंचा पद मिले, उनके कंपनी में बड़े बड़े वो लोग बन जाए, मैनेजर बन जाए। क्यों? उसके लिए एक दूसरा भी कारण है कि उनके पास अभी टीम आ जाएगी उनके नीचे काम करने के लिए। उसमें एक ना एक व्यक्ति होगा ही जो बड़ा घमंडी होता है, जो सुनता नहीं है और जो बिल्कुल उल्टा ही कर देता है। फिर देख लेंगे हम कि आप उसको कैसे उसके साथ व्यवहार करते हैं। Now Jesus needs followers who do not quit. सुनिए, यीशु को भी ऐसे ही अनुकरण करने वाले चाहिए जो बीच में ही राह छोड़कर निकल नहीं जाते। These fishermen were very patient and dedicated when it come to doing their work. ये मछुआरे उनके काम में, उनके व्यवसाय में बड़े वो शौकीन थे उसमें, और वो करते थे। He needs followers today, right now. He समर्पित needs थे। people who will not quit. सुनिए, यीशु को भी इस प्रकार के चेले चाहिए, अनुकरण करने वाले चाहिए, जो बीच में, रास्ते के बीच में छोड़कर नहीं चले जाएंगे, You know, जो समर्पित है। let's just go quickly to Luke chapter 9. I think it's 9:62. Hallelujah. Hallelujah. We'll just see quickly. It is a verse. और आइए जल्दी से हम लूका रचित सुसमाचार 9 और 62 में Wait. जल्दी से Let me देख just see लेंगे। where is it? Is it Luke 9? Okay, Yes. it is about यस to take the plow. यस 62 जो पद है मैं पढ़ लूंगी। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है, परमेश्वर के राज के लिए योग्य नहीं। This is not me saying that. This is Jesus. In my Bible is written in red. अरे भाई साहब, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बाइबल में कलाम में लिखा है, लाल अक्षर में लिखा है। No one having put his hand to the plow and looking back is fit for the kingdom of God. If you are looking back right now, you are not fit for the kingdom of God. यीशु ने ये बात अपने मुंह से कही, जो कोई हल पर हाथ रखता है, एक बार रखा है, फिर पीछे देखता है मुड़कर, तो वो प्रभु के राज के लिए योग्य नहीं है। You know, when you plow, it has to go straight. You know, India is a land of farmers. When you look at those fields and those burrows are so straight, you say, wow, how did they do that? सुनिए, जब आप खेती में जाते हो और आप खेती में देखते हो, जो भारत में तो बहुत ज़्यादा खेती बाड़ी चलती है, जब वो किसान उस हल को चलाता है, वो जो ज़मीन में चिरे जो पड़ती है वो बड़ी एकदम सीधी होती है, बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती है। Yes, कैसे होता है वो? you're not looking back and you're plowing and everything is going crooked. How would you get a good harvest? क्यों? किसान आगे देखकर ही वो हल चलाता है, वो पीछे यहाँ वहाँ देखकर मुड़कर नहीं करता। अगर किया तो वो हल इधर उधर जाके टेढ़ा मेढ़ा And हो once you जाएगा। have started something, you do not stop. You do not. When you become a believer and when things start getting tough, That's right. do you stop coming to church? आप विश्वासी होकर, इसका मतलब क्या हो रहा है? आप विश्वासी होकर मतलब आपने हल को हाथ लगा लिया, हल को हाथ में ले लिया है। अब विश्वासी होने के बाद में कुछ रुकावटें और मुसीबतें जिंदगी में आने के बाद
क्या होता है, हम इधर उधर देखने लगते हैं, पीछे मुड़कर देखने लगते हैं, फिर हमारा ये जो मार्ग है टेढ़ा मेढ़ा होने लगता है. Yes, you know, sometimes with the church, it's very often that people do this when, you know, when the, like they say, when the going gets tough, these people just, hey, I don't want any of this anymore. ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में भैया, जब आगे का मार्ग और रास्ता कठिन बनने लगता है, लोग बीच में छोड़ के हाथ ऊपर करके बोलते बस हो गया, अब इसके पीछे आपके पीछे नहीं आएंगे हम. But in the company, when you get big gullies, and you're giving more work, more hours, you don't say, oh, I'm leaving all this, I'm going. No. लेकिन भैया नौकरी के स्थान में आपके कंपनी में बॉस आके आपको गाली गलौज देता है, गालियां दे देकर जोर जोर से बोलता है, तब नीचे आपका सर आप झुकाते हो. आप ऐसा क्या बोलते हो, मैं छोड़ रहा हूं, मुझे नहीं चाहिए आपका काम, ले लो तुम तुम्हारा पैसा, ऐसे बोलते हो क्या? नहीं. Hallelujah. That is why fishermen, even when there's a storm, sometimes the waters are, the waves are high, but they still, sometimes they go out because they need to earn a living. They are, in other words, they are courageous. That's right. मछुआरे जब भी थे तब भी वो बड़े शूरवीर और धैर्यवान थे. कैसे? धैर्य था उनमें, क्योंकि वो चाहे कुछ भी आंधी तूफान भी आए, वो समुद्र में अपने नाव को लेकर ही जाते थे. क्यों? मछलियां पकड़ने ही होती है भैया, अगर कल का खाना हो तो. Today, I can give you an example. For example, if in the church you're a believer and then you see a demon-possessed person, do you run away or do you stand there and pray and try and help to cast out that demon? एक उदाहरण मैं दूंगा आपको. आप कलीसिया में बैठे हो, कलीसिया के अंदर कोई आता है जिसमें अशुद्ध आत्मा है, और वो जो भूत से मतलब पछाड़ा हुआ व्यक्ति होता है, वो इधर उधर कुछ करने लगता है. आप डर के मारे भाग जाते हो क्या? वहां रुक कर उस व्यक्ति के लिए आप प्रार्थना करते हो कि परमेश्वर उसको छुड़ा दे? Oh, are you afraid that people know, I have left my religion and I'm a follower of Christ? या आपको इस बात की डर है कि मैं मसीह के पीछे चल रहा हूं, ये बात दूसरों को, मेरे दोस्तों को पता नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो मुझे गिरा देंगे. You know, when Christ, I'll tell you this. शर्मिंदा होते हैं हम. When you we as a believer, as believers, सुनिए, आप मतलब हम सब विश्वासी होने के नाते, if we अगर हमने can stand up for Jesus, हमने यीशु मसीह के लिए वो स्थान लिया या उसके लिए हम अगर खड़े हो गए, that is when Jesus stands up for us. अगर यीशु के लिए हम खड़े हो जाएंगे, तब उसके बाद यीशु हमारे लिए खड़ा हो When जाएगा. Paul stood in front of the governor, पौलुस जब उस प्रधान के सामने खड़ा हो गया, he stood up for the Jesus, he stood up for the gospel. रोमी प्रधान के सामने खड़ा हो गया, तब पौलुस वहां पर बड़े धिटाई से कलाम के लिए और यीशु के नाम के लिए वो खड़ा हो गया. And then God stood up for Paul. He gave him such words of wisdom that even the governor said, oh, you are trying to convert me as well. और इसीलिए पौलुस के लिए परमेश्वर ने बड़े दरवाजे खोली. कैसे? पौलुस उस बड़े प्रधानमंत्री को यीशु के बारे में बताने लगा, और वो प्रधानमंत्री बोला, अरे तू क्या मुझे भी परिवर्तित करने का प्रयास कर रहा है? It's only when you stand up for Jesus. ये तब होता है जब आप यीशु के लिए कहां भी हो, Not खड़े हो when जाते you हैं. are a secret follower of Jesus. आप बिल्कुल शर्माते जब नहीं है, और आप बिल्कुल धिटाई से बताते कि हाँ, मैं यीशु का चेला हूं, हाँ, मैं यीशु के पीछे चल रहा हूं. You will remain a secret Absolutely. forever. आपको बिल्कुल क्या बोलते हैं, सीक्रेट, इसको गुप्त नहीं रखना है, इसको छिपा के रखना नहीं What है. is secret? I forgot the word. छिपा के नहीं रखना है. Okay, so we move on. अब आइए आगे बढ़ेंगे. So in the midst of storms, these fishermen are brave men, and they will go and they will fight the waves, and they will make sure that they arrive safely on shore. Right. सुनिए, आंधी तूफान कुछ भी समुद्र पे हो, ये मछुआरे अपने नाव को लेकर वहां पर जाएंगे ही, क्योंकि उनको मछलियां पकड़नी है, और मछलियां पकड़ के वो फिर से अपने नाव को धीरे धीरे उस समुद्र के किनारे ले आएंगे. The same thing for Christians. मसीह लोगों के लिए यही बात होती है. When the storm starts to rise up, जब आंधी तूफान आने लगते हैं जीवन में, what did the Bible says? He rises. We sing that song. He rises you above the storms, above the waves. वो गीत हम गाते हैं, इंग्लिश में गीत है कि जब आंधी और तूफान आता है, तब परमेश्वर क्या उसके नीचे हमें नहीं डालता है, उस लहरों के ऊपर हमें खड़ा कर देता है. हालेलुया. But not those who are darpokes and they run away as soon as something comes, or anyone, a crowd comes, they run away. No, He doesn't want these kind of followers. You are not fit for the kingdom of God. परमेश्वर केवल ढीठ लोगों को, जो धैर्यवान है,
ऐसे लोगों को लहरों के ऊपर चला देता है। उन लोगों को नहीं जो डरपोक होकर जब मुसीबत आती है कलीसिया में, अरे भाग दो यहाँ से, और धूम लगा के वहां से भाग देते हैं। नहीं नहीं नहीं, कलीसिया को छोड़ के, पासबान को छोड़ के भाग देते हैं। ऐसे लोगों को परमेश्वर उनकी परवाह नहीं करता। Fishermen are known as skilled workers. मछुआरे जो होते हैं उनको स्किल्ड वर्कर्स बोला जाता है, मतलब वो काम करने वाले होते हैं। Yes, if you want to immigrate right now, कला। if you want to go to countries like Australia or Canada, they look for skilled workers, people who work with their hands, people who can fix things, people who can repair. These are the people that they plumbers, electricians, AC technicians, all these things. अगर आपने काम के लिए, नौकरी के लिए आप बाहर देश में ढूंढ रहे हो, तो आप देखोगे उधर वहाँ लोग स्किल्ड वर्कर्स, मतलब जो अपने हाथों से काम करने में कुशल है, बड़ी कला उनको होती है, जैसे प्लम्बर हो, इलेक्ट्रिशियन हो, ऐसे जो हाथों से काम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये लोग खोज में है, मतलब कनाडा में, यूएई में। और क्यों? क्योंकि इस प्रकार के लोग उनके लिए फायदेमंद होते हैं। Now Jesus said, come on, leave what you're doing. I'm going to give you another skill that you're going to use. And a fisherman, when he receives a skill, he uses it the right way and the best way. सुनिए, ये मछुआरों का एक ही कला होती थी अब तक। कौन सी कला थी? मछलियां पकड़ने की। भैया चाहे आंधी तूफान बारिश कुछ भी हो, मछलियां पकड़ते ही थे। अब यीशु आकर उनको बोल रहा है, चलो ये छोड़ दो, मैं तुमको एक दूसरी कला सिखाने वाला हूं। मछुआरे ने सोचा होगा, चलो भैया एक और कला सीख लेंगे। जब वो सीख लेते हैं, उसमें वो निपुण हो जाते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं उसी प्रकार से जैसे उन्हें पहले किया था। So what kind of a follower are you? I asked this question this morning. It is a very important question. That's right. And you need to, That's right. During the course of this day, sit down with God and ask Him, what kind of a follower am I? सुनिए गौर से, आज आपको बैठकर, बिल्कुल जब आप स्वस्थ हो वहां पर आप बैठना और अपने आप को निश्चिंत होकर अपने आप को पूछ लेना, मैं किस प्रकार का चेला हूं, किस प्रकार से मैं अनुकरण करने वाला हूं, किस प्रकार का मैं एक व्यक्ति हूं जो प्रभु के पीछे चल रहा। Now, are you those that hear the words, follow me, and you say yes? अपने बारे में ही सोचना। अगर यीशु ने आपके सामने खड़े होकर आपको बोला मेरे पीछे आओ, क्या आप तुरंत हाँ यीशु ऐसे बोल देंगे? I'm not saying leave your jobs. मैं ये नहीं बोल रहा हूं आपकी नौकरियां को छोड़कर। No. नहीं, But जी नहीं। like in the kingdom of God, there are lots of things that can be done. It doesn't mean only being a pastor or a worship leader. right. No, there are many other things that can be done in the church. जी नहीं, कलीसिया के अंदर बहुत ज्यादा चीजें हम कर सकते हैं। केवल पासबान बनना, सेवकाई करना, प्रचार करना इतना ही नहीं होता है भैया। प्रभु के काम में बहुत ज्यादा, प्रभु के घर में बहुत ज्यादा काम होते हैं। Listen, you can either be that, like those fishermen, like Peter and Andrew and the others, John, James and all, or you can be like this person. Let me show you. अब एक तो आप पतरस, अंद्रयास और याकूब और उन सारे चेलों, यूहन्ना के समान हो सकते हैं, या इस व्यक्ति के समान आप बन सकते हो जिसके बारे में मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। Luke chapter 9 verse 59. लूका रचित सुसमाचार 9वां अध्याय और 59 जो पद है, Listen carefully. सुनिए गौर से। Then he said to another, follow me again. हाँ, उसने दूसरे से कहा मेरे पीछे हो ले। फिर एक बार और बोला। But he said, the person, पर अब ये व्यक्ति क्या उत्तर देता है? Lord, let me first go and bury my father. हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। And Jesus said to him that the dead bury their own dead, but you go and preach the kingdom of God. यीशु ने उससे उत्तर दिया, मैं मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दो, पर तू जाकर परमेश्वर के राज की कथा सुन। And another also he said, Lord, I will follow you, but let me first go and bid them farewell who are at my house. It's a good thing, you should do that. सुनो, यीशु ने एक और को बुलाया था और वो एक और क्या बोल दिया? अरे उसने भी कहा, हे प्रभु, मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा ले आऊं। Now listen, if this man's father was dead, I don't think he would have been there listening to Jesus. He would be busy with the funeral. So he said, let me go and bury my father.
सुनिए, ये जो पहला वाला आदमी है, शख्स है, मुझे ऐसे नहीं लगता अगर इसका पिता मर भी गया था तो ये यहाँ पर क्या कर रहा था? उसको उसके घर में उसके पिता के साथ वहां पर होना था, पर वो यीशु को बोल रहा है मुझे जाकर उसको गाड़ दे। Or maybe he's saying, let me wait for my father to die. या इसका कहने का मतलब ऐसा था इस व्यक्ति का कि मैं रुका हूं मेरा पिता जब मरेगा, उसकी So when मौत he के लिए। dies, I will put the property into my name, and then I will settle myself down, and I will have my bank account, everything. उसका कहने का मतलब शायद ऐसे होगा कि जब वो मेरा पिताजी है वो मर जाएगा, दफन उसको कर दूंगा मैं, और फिर उसके बाद में सारा मकान और जायदाद मेरा बन जाएगा, और फिर मैं सब ठीक ठाक करके फिर यीशु तेरे पीछे मैं बोलूंगा। Then I will come and follow अरे you. फिर तेरे पीछे होलूंगा ना। And the other, he said, let me go home and say goodbye. And when he goes home, he says goodbye. Nay, mat jao, don't go. Why are you following that man? And then you stay there. अब दूसरे को भी यीशु बोला था, अरे चल मेरे पीछे आ ले। सबने हाँ नहीं बोला। ये दूसरा वाला क्या बोला? मुझे घर जाने दे यीशु, मेरे परिवार के लोगों को जरा विदा करने दे, बाय बाय बोलने दे। टाटा बोलने के लिए जब ये घर जा भी गया होता तो घर के लोग क्या बोलते थे, या उसकी माँ कोई है बहन थे, उसको वो शायद उन्होंने बोला होगा, अरे मत जाना मत जाना, इधर रहना। I don't know if the Jews were as emotional as the Indians. अब मैं नहीं जानता यहूदी लोग भारतीय लोगों के जैसे इतने भावुक है या नहीं, मुझे नहीं पता। You see the mother crying, beta, mat jao, and then crying, and everything is all emotional and drama, and if it's like a Hindi serial, overacting. बॉलीवुड में जैसे होता है, आपको पता होगा, जो लोग पिक्चर देखते हैं, सीरियल देखते हैं, उसमें कितना ज्यादा एक्टिंग, ओवर एक्टिंग बोलते हैं, ये भारत में बहुत चलता है। और जो माँ और बहनें तो बहुत ज्यादा करती है, अरे बेटा मत जा, मेरा क्या होगा, ये सब बोल बोल के उसको वो रुका देते। So these are excuses. ये सारी बातें क्या होती है? बहाने। Excuses to come to church. बहाने बहुतायत की होती है। चर्च को आने के लिए तो बहुत मिलती बहाने, Yes, बहुत when मिलते। good times, there's always excuses. अच्छे समय में, अच्छे दिन जब है, तब भी बहाने बहुत होते थे। It is sad to see this happening today, That's right. especially in the days that Absolutely. we are living right now. It is so ये sad. इतनी दुख और दर्द लाने वाली बात है कि खास तौर से ऐसे दिनों में जब हम जी रहे, महामारी के दिनों में भी लोगों को बहाने इधर भी मिलते हैं प्रभु के घर में नहीं आने के लिए। That is why Jesus said, verse 62, no one having put his hand to the plow and looking back is fit for the kingdom of God. ये दोनों की बातें सुनकर यीशु बिल्कुल हताश होकर क्या बोला? अरे जो कोई हल को हाथ रखता है और पीछे देखता है वो प्रभु के राज के लिए योग्य नहीं है। Let me give you another example. मैं एक और उदाहरण दूंगा। 1 Kings 19:19. Let's go there quickly. Time is going. पहला राजा 1 Kings 19:19. 19:19। Hallelujah. Now, if this man had not obeyed, if this man had not, we would not be reading about him in the book this morning. अगर इस शख्स ने, इस व्यक्ति ने सुना नहीं होता, माना नहीं होता प्रभु की बात, तो हम इसके बारे में आज पढ़ ही नहीं लेते। And there's another man who was plowing. सुनिए, एक और आदमी था जो हल चला रहा था। And so he departed from there and found Elisha, the son of Shaphat, who was plowing with the 12 yoke of oxen before him, and he was with the 12. Then Elijah passed by him and threw his mantle on him. तब वो वहां से चल दिया और शपात का पुत्र अलीशा उसे मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे लिए किए हुए स्वयं 12वीं के साथ होकर हल जोत रहा था। उसके पास जाकर एलिया ने अपनी चद्दर उस पर डाल दी। And then Elisha runs back and says to him, what he says to him, he says, first let me go and kiss my father and my mother goodbye, and then I will go with you. अरे एलिया ने केवल एक चद्दर उस पर डाल दी, पर ये जो था अलीशा क्या करने लगा? बैलों को छोड़ा, एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा, मुझे अपने माता पिता को चुम्बन देने दे और तब मैं तेरे पीछे चलूंगा। Elijah replied, एलिया ने उसे उत्तर दिया, go back, लौट जा, but think about what I have done to you. लौट जा, मैंने तुझे क्या किया है, केवल इस पर तू विचार करना, सोच By लेना। putting his mantle on Elisha, he said, in other words, Hallelujah. Elisha, follow me. एलिया ने जब उसकी चद्दर एलिया पर केवल फेंक दी, उसका क्या मतलब था? एलिया, उसने कुछ बोला नहीं, केवल फेंका, एलिया चल मेरे पीछे आ लेना। God, no, it's just like this. Follow me.
अरे words. आपको ये जो चिन्ह होते, साइंस होते, समझना चाहिए. मेरे पीछे आओ. You know, politicians have to give speeches for hours. ये जो Yes. राजनीति में लोग होते हैं, उनको बड़े बड़े भाषण देने होते हैं. Why you should vote for me? और क्या भाषण दे कि लोगों ने उनको चुनना क्यों चाहिए. Why you should follow me as a leader? चुनाव उनमें मतलब उनको क्यों वोट देना चाहिए और उनके पीछे क्यों हो लेना And चाहिए. he makes promises upon promises. और ये जो राजकारण राजनीति के Yes. लोग बड़े बड़े वायदे देते हैं, बहुत बड़े Which he keeps all of them. It's very and the people believe that leader. ये प्रतिज्ञाएं देते हैं और शायद वायदे रख भी रहे होंगे, हमें पता नहीं. और लोग जो है मासूम लोग, वो बेचारे उस पर विश्वास रखते हैं. But Jesus has no time for all this. Even his prophets has no time for all That's right. this. He just says, "Come on, follow me." लेकिन यीशु और उसके भविष्यवक्ताओं को भाषण देने के लिए समय नहीं है भैया, बिल्कुल ही समय नहीं है. वो एक ही बोलता है, चलो मेरे पीछे आओ, बस आओ मेरे पीछे. चद्दर फेंक And he देता said, है. "What have I done to you?" This is how Elijah responds. पर चद्दर फेंकने के बाद अलीशा उसके पीछे भागते भागते बोला, अरे रुक रुक रुक, मैं आ रहा हूँ, पहले मेरे परिवार से मिलके आता हूँ. एलिया ने उससे बोला, मैंने तुझे क्या बोला? मैंने कुछ नहीं बोला. जो मैंने किया बस उस पे तू सोच लेना. What have I done? मैंने क्या किया? Arey, go back to your oxen. जा फिर से तेरा जो हल है वो चलाते जा. Go back to farming. जा फिर से तू तेरी खेती बाड़ी करते जा. What have I done to you? तू तेरा काम कर बेटा, मैंने तुझे क्या Go किया? back and sweat under the sun. जा फिर से उस धूप में जाकर तू श्रम कर, पसीना पसीना बहाते श्रम करते जा. Go and work hard. I mean, जाओ तुम ज्यादा कष्ट करो, बहुत कष्ट करो. what have I done to you? मैंने क्या किया तुझे? कुछ नहीं. All I'm going to do is make you a prophet, and you will have a double portion of what I have. Hallelujah. मैं तुझे और कुछ नहीं दे सकता हूँ. मैं तुझे एक भविष्य वक्ता बनाने वाला हूँ और एक दुय्यम जो हिस्सा है, दुगना हिस्सा मैं तुझे देने वाला हूँ. All I'm going to do is make you do double of what I've done. जो मैंने किया बेटा, उसका दुगना हिस्सा तू करके दिखाने वाला है. You're going to be serving God and not man. तू परमेश्वर की सेवा करने वाला है, मनुष्य की नहीं. Lives of the people are going to be touched. What have I done to you? Go back. लोगों के जीवनों को तू छूने वाला है. मैंने तुझे क्या किया? जा तेरा काम करते जा. He didn't say all that, ये सब एलिया नहीं बोला, but he said, "What have I done to you?" It's very simple words which you've understood already. और ये बहुत सादे और एकदम सीधे सफाई से एलिया उसको बोला, मैंने क्या किया तुझे? Hallelujah. So, लौट जा. what did Elisha do? He returned to his oxen and he slaughtered them. He used the wood from the plow to build a fire to roast the flesh. Wow, barbecue. And then he passed around the meat to the townspeople. He shared the meat. All got the people got nice roasted meat, and they all ate. And he went with Elijah as his assistant. अब ये वचन पास्टर साहब को बहुत अच्छा लगता है. 21वीं आयत, तब वो उसके पीछे से लौट गया और एक जोड़ी बैल लेकर बलि किए और बैलों का सामान जलाकर उनका मांस पका के बारबेक्यू करके अपने लोगों को दे दिया और उन्होंने खाया. तब वे कमर बांधकर एलिया के पीछे चला और उसकी सेवा टहल करने लगा. Hallelujah. Hallelujah. When I listen to some of the pastors in around the world, जब मैं कुछ पासबानों का प्रचार सुन भी लेता हूँ जो दुनिया में कुछ है. listen, like I said a few weeks ago, this is the decade, this is the year of the pay. You remember the 5782? The 80 represents the pay. सुनिए, ये जो 5782 ये साल इब्रानी कैलेंडर के अनुसार मैंने आपको बताया था. अब ये 8 जो होता है, 80 जो अंक या संख्या होती है, वो पे शब्द से जुड़ी हुई है. The pay represents the mouth. पे मतलब क्या होता है? मुख, Mouth. मुंह. So it is the decade of the mouth. इसलिए ये जो शतक है वो है मुंह का शतक. What? It has been 2 years now. What has the enemy tried to do with our mouths? आप ही सोच लीजिए, ये है मुंह का शतक या साल या बरस. शैतान या दुश्मन ने आपके मुंह के साथ क्या करने का प्रयास किया. I have one brother sitting right in front of me right now. अभी मेरे सामने एक भाई बैठा हुआ है. His mouth is covered with a mask. उनके मुंह पर मास्क है. His mouth is covered. उनके मुंह पर मास्क है. The enemy wants to shut our mouths up.
शैतान क्या चाह रहा है? सबको मास्क पहनाओ, उनके मुंह बंद कर दो। I'm just using this as allegory. Do not मैं मजाक कर रहा हूँ। wear your masks. I wear my mask when I go out. जरूर मास्क पहन लीजिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ मास्क मत पहनना, मास्क पहनना जरूर पहनना बाहर जाते हुए। But लेकिन putting on the mask, he wants to shut up the Christians. He wants to shut up the church because we are dangerous to this world. इस साल में शैतान एक ही करना चाह रहा है कि लोगों के मुंह को बंद किसी भी प्रकार से करे, मास्क पहना कर करे, कलीसिया के मुंह को भी बंद करे और खुदा के लोगों के मुंह को खास तौर से बंद कर दे। When you shut the mouth of the pastor, the church is closed down. जब पासबान के मुंह को बंद किया जाता है तब कलीसिया बंद हो जाती है। The Christians don't know what to do. They're scattered. मसीह लोगों को जो भेड़ होती है उनको पता नहीं होता है क्या करना, अभी इधर उधर वो भटक जाते हैं। That is why there are many churches right now who have closed right. down permanently in many countries. बहुत कलीसियाएं हैं भैया इस लॉकडाउन के जरिए जो अपने दरवाजों को उन्होंने बंद कर दिया है, और ज्यादा राष्ट्रों में उन्होंने अपने आप को बंद कर दिया। उनके सारे जो भेड़ है, जो लोग है, मंडली है, वो तितर बितर हो गई है। These are those followers ये ऐसे अनुकरण करने वाले थे who the devil managed to shut up their mouths. जिनको शैतान ने बहुत कोशिश की उनके मुंह को बंद करने की, और उसमें वो सफल हो गया। But there are also those believers, those followers who the devil could not manage to shut up their mouths, but they became more louder and louder, and they went to all the media sources and they went and preached the word. लेकिन ऐसे भी अनुकरण करने वाले हैं जिनके मुंह को शैतान ने बंद करने की कोशिश की, लेकिन ये लोगों ने अपने मुंह को बंद न रखते हुए अपने मुंह को और ज्यादा खोला, आवाज को और ज्यादा बुलंद कर दिया, और यीशु का प्रचार चाहे सोशल मीडिया पे हो, सारे इंस्टाग्राम फेसबुक पर करते गए जब तक ये कलाम किसी के कान पर न पहुंच पाए तब। And many of those followers बहुत वो अनुकरण करने वाले हैं, भक्त इनको बोलते हैं। In other words, let's use the technical term, they have unfollowed ये Jesus. बहुत भक्त है, वो पहले फॉलो करते थे, अभी उन्होंने अनफॉलो कर दिया। And the good news is पर जो खुश खबरी ये है, thousands and thousands of new followers have been added to the church all worldwide. चाहे कितना भी आप अनफॉलो कर दीजिए, लेकिन उसके बदले में हजारों और भी हजारों लोग यीशु के पीछे चलने वाले हैं। Thank you, Jesus. धन्यवाद I यीशु। thank God for He even used us. No matter how right. small, but because of That's our right. online services, we had a family who came, Amen. unbelieving family Amen. who came and they gave their life to Jesus. Amen. All of them. Amen. हम हमारी बात भी कर रहे हैं, चाहे हम बड़ी कलीसिया भी नहीं हो तो भी ये जो हमने जारी रखा था ऑनलाइन के जरिए, भैया ये जो श्रम हमारे भाइयों ने और हमने यहाँ पर उठाए, हर वक्त कुछ ना कुछ आपके तरफ लाने के लिए, ये बात असफल नहीं हुई, क्योंकि एक परिवार, कम से कम हम एक के बारे में बोल रहे, बहुत थे, लेकिन एक परिवार चर्च में आई और उनको ऑनलाइन के प्रोग्राम्स के, हमारे प्रोग्राम्स के द्वारा इतनी ज्यादा आशीष मिली, उन्होंने यीशु को ग्रहण भी कर लिया, और वो अन्य जातियों में से है। We have other new followers, yes, who write to us and have been blessed. बहुत दूसरे भी फॉलोअर्स हमारे पेज के हैं जो हर हफ्ते लिखते हैं कि उनको बड़ी आशीष मिल रही है, बरकत मिल रही है। And if that family is watching us right now who came to church and got baptized, not baptized but received and said the salvation prayer, अगर यदि वो परिवार अभी हमें देख रहे हैं जिन्होंने प्रभु को ग्रहण किया और जिन्होंने उद्धार की प्रार्थना हमारे साथ की थी कुछ महीनों पहले, don't look back. मैं उनसे बोल रहा हूं अभी आप पीछे मत देखना। You know, just like the fisherman, you heard God's voice speaking through That's right. through the church. मछुआरे के जैसे आपने प्रभु की आवाज सुनी थी जो आपसे बातें कर रहा था कलीसिया के द्वारे। In other words, he said to you, follow me. दूसरे शब्दों में आपको क्या बोला यीशु? मेरे पीछे आ ले। And you've decided not only yourself but your whole family to follow Jesus. और तुरंत आपने निर्णय लिया, अरे मैं अकेला नहीं, मेरे सारे परिवार को यीशु के पीछे मैं ले जाऊंगा। हालेलुया, Amen. Hallelujah. हालेलुया। So God bless you. इसलिए प्रभु आपको आशीष देता रहे। You are now following the right अभी way. आप सही मार्ग पर चल रहे हो, You're on the right path. आप बिल्कुल सही मार्ग पर चल रहे हो। Hallelujah. Hallelujah. And we also, as a pastor, I also care for those who have been with us before I even was here, who have been with Pastor Davide Amen. for all these years. मैं यहाँ आने से पहले भी, बहुत साल पहले, जो लोग बड़ी विश्वास योग्यता से पास्टर डावरे के साथ आज तक
खड़े रहे हैं, उनकी भी मैं तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूं और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं What are you following right प्रभु now? को उनके लिए। Who are you following? आप किसके पीछे आज चल रहे हैं? The spirit of only working, or the spirit of anxiety and fear, the spirit of only working and earning money? मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, आज आप किसके पीछे चल रहे हैं? किसका अनुकरण आप कर रहे हैं? क्या वो पैसा है, या वो पैसे का वो आत्मा है, या कमाने के लिए, या अपने जीवन की सुरक्षा के लिए? This, as we speak right now, सुनिए, अभी जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, many very powerful evil spirits have been released into the atmosphere. राइट, अभी जब हम बात कर रहे हैं, बहुत घिनौने, बहुत ताकतवर ऐसे दुष्ट आत्माओं को नरक की अग्निकुंड में से अब छोड़ा जा रहा है। You know, the mighty Babylon is no longer here. जो महान बाबेल पहले होती थी, वो अभी नहीं है इधर। Listen, follow. सुनिए। When you follow what is happening now, the events, the mighty America is going to fall. सुनिए, The most powerful country in the world. अमेरिका जो एक समय में सबसे ताकतवर और सामर्थ्यवान राष्ट्र था दुनिया में सबसे ज्यादा, अब वो भी गिरने वाला है। For the leaders are godless people. They do not fear God, and they are against God-fearing people. क्यों? क्योंकि उनके जो अगवे अभी है, उनका जो सरकार अभी है, वो प्रभु का भय नहीं मानने वाला है, बल्कि वो लोगों, प्रभु के लोगों को सताने वाली सरकार है। That is why America is not found in Bible prophecy. इसी कारण अमेरिका का नाम कलाम की भविष्यवाणी में पाया नहीं जाता। I am telling you, do not listen to the false teachers who say that America is that Babylon, mystery Babylon. No, America is America. Babylon is there in That's the right. area of Iraq. बहुत That ऐसे is where it भविष्य is. वक्ता है जो भविष्यवाणी, जो प्रभु के वचन भविष्यवाणी है, उसका गलत अर्थ निकाल कर बोलते कि अमेरिका वो रहस्यमय बाबेल है। नहीं, गलत है, वो रहस्यमय बाबेल अमेरिका नहीं है भैया, वो कुछ और है। आपको बाद में मैं जरूर आपको बताने वाला हूँ। America is falling, it's crumbling. अमेरिका अगर देखा जाए आज वो गिर रहा है, बिल्कुल सब कुछ बर्बाद हो रहा The है। government has gone against the church. उसकी सरकार कलीसिया के विरोध में खड़ी हो गई है, इसलिए। And together with their followers, they are rejoicing right now. और उनके भक्त के साथ साथ भक्तों को लेकर अब वो सब आनंद मना रहे हैं कि कलीसिया गिर गई है। And that is why the followers of Jesus Christ are not keeping their mouths shut, even though the government wants, the devil wants to shut your mouth. No. उधर के भी जो विश्वासी है, जो प्रभु के पीछे यीशु के भक्त है, वो अपने मुंह को बंद नहीं रख रहे। यदि शैतान चाहता है कि वो शांत रहे, वो नहीं शांत रहे। The church is becoming louder. क्यों? वहां की कलीसिया और ज्यादा बुलंद आवाज से चढ़ा कर बोल रही है। Even in India, the church has to Amen. come louder. भारत के कलीसिया को भी अभी खड़ा होकर अपनी आवाज को बुलंद करना है। We need to have more followers. God, That's right. they are there, they are out there, and they are just waiting to hear that Amen. voice calling out and saying, "Follow me." यीशु के जो भक्त है, उनको हमें खड़ा करना है और भी उनमें हमें शामिल करके उस आवाज को सुनने के लिए उनको तैयार करना है, जो आवाज कह रही है मेरे पीछे Just like John the Baptist was that voice in the wilderness. मेरे पीछे आओ। वही वाणी थी उस मरुभूमि रेगिस्तान में जो बपतिस्मा करने वाले यूहन्ना के मुंह से निकल रही थी। God uses us, our voices. आमीन। परमेश्वर हमारे आवाजों को इस्तेमाल करता है। And the person that hears it, सुनिए, आवाजों को परमेश्वर इस्तेमाल करता है, लेकिन जो व्यक्ति सुनता है। in other words, when you are preaching the gospel, Jesus is saying, "Follow me." दूसरे शब्दों में, जब कोई प्रचार कर रहा है, जब हम प्रचार कर रहे हैं, यीशु क्या बोल रहा है उस प्रचार के द्वारा? मेरे पीछे आओ, आओ मेरे पीछे And there आओ। are many like Peter and Andrew and the fishermen, even Matthew the tax collector. There are many like these men who will respond to that voice that says, "Follow me." बहुत है पतरस, अंद्रयास और उन मछुआरों के जैसे जो इसको सुन के, यीशु का बयान सुन के मेरे पीछे आओ, सुनने के बाद तुरंत जाल फेंक कर, सारा सामान फेंक कर उसके पीछे चलेंगे। There are many people बहुत लोग हैं। like Mary Magdalene. मगदल मरियम के जैसे भी बहुत लोग हैं भैया। Imagine how much of opposition she received because of her past. सुनिए, उसके चरित्र को देखकर कितना विरोध उसने बर्दाश्त किया होगा। Listen, Nicodemus. निकोदेमस आपको याद आया होगा। If he was
a man today, अगर आज वो जिंदा होता, he would have been known as Dr. Reverend Nicodemus. उसको ऐसा टाइटल दिया जाता, डॉक्टर रेवरेंड निकोडेमस। Yes, because he was a doctor of the law of the Jews. He was a Pharisee who knew the scriptures. वो फरीसी था भैया, निकोदेम बड़ा बुद्धिमान ऐसा व्यक्ति, बड़ा सीखा पढ़ा लिखा व्यक्ति था। He too, he followed Jesus at a time in secret. इसने भी क्या किया, बिल्कुल छिपते छिपते हुए यीशु के पीछे हो लिया था। But after the death of Jesus on that लेकिन cross, यीशु के मौत के बाद में Nicodemus together with Joseph of Arimathea, they went and they took the body of Jesus in front of everybody, and he was no longer a secret that I am now a follower of Jesus. यूसुफ के साथ निकोदेमस ने यीशु के शव को लेकर उसने उसको दफन किया, गाड़ दिया। मतलब कि उसने सबको दिखा दिया, देखो अभी मैं नहीं शर्मिंदा हूँ, मैं नहीं शर्माता हूँ कि मैं यीशु के पीछे चल रहा हूँ, मैं उसका भक्त हूँ। Whether you're a इसकी शर्म fisherman, मुझे नहीं है। whether you're a fisherman, अरे आप मछुआरे भी हो, whether you're the low caste, आप बिल्कुल नीचे दर्जे के भी हो, whether you live in the most poorest part of the city or the country, चाहे आप शहर के बिल्कुल गरीब स्थान में, बस्ती में अगर आप जी रहे हो, or whether you live in the wealthiest part of the city, और शायद आप बिल्कुल अमीर ऐसे and you're भाग well में जी रहे हो, respected, आपका घर वहां पर है और आप सब लोग आपकी बड़ी इज्जत करते हैं। we all need Jesus. आप चाहे कोई भी हो, सबको Jesus यीशु says की to जरूरत है। everybody, no matter who you are, follow me. यीशु की जरूरत सबको है। यीशु सबको बोलता है मेरे पीछे आओ। So this morning you have a choice. इसलिए आज सुबह आपको चुनाव दिया जा रहा है। If you're a follower, you continue to follow Jesus. यदि आप यीशु के भक्त हो, उसके पीछे ही जाते If you're रहना। not a follower, just listen to that voice calling out to you and saying to you, follow me my child. अगर आप उसके पीछे नहीं चल रहे तो इसकी आवाज सुनने के लिए अपने कानों को थोड़ा सा खोल दीजिए, क्योंकि वो आपसे अभी बोल रहा है, बेटा मेरे पीछे आ जा, मेरे पीछे चलने And लग। those who are followers, जो भक्त है यीशु के, stop all those excuses. अपने सारे जो बहाने होते थे, Stop बंद looking कर दे। back. Stop looking back. पीछे मुड़कर देखना बंद कर देना, Stop it. बंद कर देना। I don't want Jesus to say you are not fit for my kingdom. मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि यीशु आपके बारे में ऐसा कहे कि मेरे राज के लिए तू योग्य नहीं है। I don't want anyone to be among those that Jesus says, Lord, Lord. Not everyone who says Lord, Lord shall enter into the kingdom मैं of बिल्कुल God. नहीं चाहता हूँ भाइयों बहनों, हमारे कलीसिया में कोई भी उस गट में शामिल हो या पाया जाए जो बोल रहा था प्रभु प्रभु, और प्रभु मुड़कर उनसे बोलता है मैं तुम्हें नहीं जानता। God wants to see fruits. परमेश्वर फल देखना चाहता है। Listen, सुनिए, fruits are what? I'm not talking about a tree, but you as your fruits are your deeds. सुनिए, फल क्या होते हैं? अपने कर्म, तुम्हारे कर्मों के द्वारा दिखाइए कि यीशु तुम्हारे अंदर जी रहा है। This is how you would know a believer, a true believer in Amen. Jesus Christ. It's by their fruits. एक सच्चा विश्वासी, अच्छा खासा विश्वासी कैसा पहचाना जाएगा? Yes. उसके फलों के द्वारा, Matthew कर्मों के 7:15. द्वारा। Matthew 7:15. मत्ती रचित सुसमाचार 7:15। The world needs to see the fruits. संसार को भी यही फल या ये कर्म प्रभु के लोगों के भक्तों के द्वारा दिखना है, Amen. देखना है। We are that healthy soil. हम वो जमीन, वो मिट्टी है, When the seed of the word fell on that soil, अच्छी जमीन है। जब कलाम का बीज उस अच्छी जमीन में गिरता it था, grew up to be a huge plant आमेन, that bears good fruit. तो उसमें से बड़ा पेड़, बड़ा वृक्ष आता था और उसमें से अच्छे अच्छे फल आते थे। These are the followers of Jesus Christ. ये कौन है? ये यीशु के भक्त है। Amen. Hallelujah. These are the अच्छे फल दिखाने True वाले, followers of अच्छे Jesus फल, Christ. ये अच्छे फल दिखाने वाले प्रभु यीशु के सच्चे और अच्छे भक्त हैं। Listen, these are perilous times we are living in. सुनिए भाइयों बहनों, बहुत ही भयानक और खतरनाक समय में हम जी रहे हैं। And the devil wants you to click on that unfollow icon. शैतान क्या चाहता है कि आपकी उंगली को खींच खींच कर अनफॉलो जो लिखा हुआ है आपके पेज के ऊपर, उस पर आप क्लिक करें। Oh, he वो wants you चाहता है to. He आपके मन wants को you भरमा to. के, गुस्सा लाके, He wants you to unscribe, और वो चाहता है कि आप unsubscribe. आप अनसब्सक्राइब करें। Unsubscribe. No. बिल्कुल नहीं, Don't बिल्कुल even नहीं। look at that. आप उस अनसब्सक्राइब और
अनफॉलो के पास देखे भी मत। Once you clicked on that following button, the follow, आमीन। एक बार आपने वो फॉलो के बटन पर क्लिक कर दिया, there's no looking back. तब वहां से लेकर अब पीछे मुड़कर लौट कर देखने की अब आपको जरूरत ही नहीं और आपको मौका भी नहीं दिया जाएगा। Hallelujah. Let us pray. आइए हम सब दुआ करेंगे। Heavenly Father, we come to you in prayer. ओ आसमानी खुदा बाप, हम तेरे पास This दुआ में आ रहे हैं। morning we give thanks for sending Yes, your Lord. son Jesus. तेरे बेटे को यीशु को तूने भेजा, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। Oh, the best थैंक यू and the most precious gift any Oh, man shalom, a woman can Lord. receive. सबसे अच्छा, सबसे उत्तम तोहफा जो किसी भी व्यक्ति को, पुरुष और स्त्री को मिल सकता है। Oh, I thank you for choosing us, for electing us. यस लॉर्ड, तूने हमें चुना, मुझे चुना, इसलिए धन्यवाद देते हैं। For when I heard that voice saying to me, follow me. क्योंकि जब मैंने उस आवाज को सुना, मेरे पीछे आ बेटा, When you heard that voice saying, follow me. जब आपने उस आवाज को सुना जो बोल रही थी आपको, मेरे पीछे आ जा, We left everything हमने सब कुछ छोड़ दिया, and we followed your son. सब कुछ छोड़कर तेरे बेटे के पीछे हम हो लिए। Hallelujah. I thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you for that voice ओ उस आवाज के लिए धन्यवाद, calling out to me. उस बुलाहट के लिए धन्यवाद, I thank you, Jesus, for you died for me क्योंकि तू मेरे लिए मर गया, so that I could be set free, तूने मौत सहन की ताकि मैं आजाद हो that I can जाऊं, be your ambassador, I could be your disciple in this Amen. world today. ताकि मैं तेरा राजपूत बन सकूं, ताकि मैं तेरा चेला बन सकूं इस संसार में। That is why I will continue to preach this Hallelujah. gospel to those who have not heard it, Amen. and I'll continue to teach to those who have chosen. इसलिए मैं यही सुसमाचार उन लोगों तक पहुंचाते जाऊंगा और मैं करते रहूंगा जिन्होंने सुना नहीं आज For तक, I want to remind them, क्योंकि मैं उनको याद दिलाना because चाहता you हूँ। want to remind us that we have a Yes. race and we should Yes. finish this race. ओ तू हमें याद दिलाना चाहता है कि हमारी एक शरीयत है और इस शरीयत को पूरी करना है। I pray for each and every one of you listening right now that you will never turn back. You will not Yes. turn back. ओ मैं सबके लिए जो सुन रहे हैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप हल को हाथ लगाकर पीछे लौटकर मुड़कर नहीं देखेंगे And you will bear good fruits. और अच्छे फल आप लाते As जाओगे। a husband, you will bear good fruit. As a wife, you will bear good fruit. एक पति के नाते, एक पत्नी के नाते अच्छे फल आप दिखाएंगे। As young men and young women, you will bear good fruits and be obedient to your Right. parents. जवानों के नाते आप अच्छे फल दिखाकर आपके माँ बाप के आज्ञाओं में आप रहोगे। You will honor your parents. आपके माँ बाप का आप उनकी इज्जत By करेंगे। honoring your parents, you honor the God आमीन। उनकी इज्जत सम्मान करने के द्वारा परमेश्वर की इज्जत आप रख that रहे हो, blesses not only them but blesses Yes, you Lord. as a family. जो परमेश्वर केवल उनको ही नहीं लेकिन आपको और आपके परिवार को भी आशीष देता है। I thank you, Jesus, धन्यवाद यीशु, for making me a follower. क्योंकि तूने मुझे एक भक्त बनाया। I thank you. In Jesus' name I pray. Amen. धन्यवाद देता हूं और यीशु के नाम से ये प्रार्थना विनती करता हूँ, सुन और कबूल कर। Amen. आमीन। Thank you. आमीन। And all followers.